Record. All right, guys. So, Marine, what do you think? Let's talk about some concepts. Marine, do you Yeah. have that notes with you? The chapter-wise notes? Yeah, 1 minute. Okay, so I'm also going to open up, or I don't have those notes with me. One person. मेरे पास. Okay, all right. So, Marine, let's open chapter number. Let's Hassan, mute yourself. So let's, Marine, open up the chapter number 1, and Okay. one by one tell me the headings of Okay. those chapters. So let me, and guys, everyone, when she tells, when I feel that some topic is important, I'm gonna ask how many of you know the concept of that topic. Okay, and we'll move over the topic. So yeah, Marine, over to you. Slowly tell the headings of that chapter 1. So in the chapter 1, there is first some names. So Okay. it's a Canadian Constitution. Then insurer, Mm-hmm. agent, types Mm-hmm. of agent, Mm-hmm. capacity and status of person, Mm-hmm. natural person, Mm-hmm. partnership, Mm-hmm. cooperation, Mm-hmm. difference between power of attorney and enduring power of attorney. That's it. That's it. Just keep it like this. So I've got few things here that I need to ask. And I'm not gonna be the person asking, only answering. I will involve more people, right? Hassan, I will also involve you today because we did some of these things together as well. You were in the office. By the way, who will tell me who insurer is? Who insurer is? Insurer, Yes. the person who provide the insurance to the person who is insured. So The insurer is company. company. Basically, it's a company like Sun Life or Manulife. So that's who provide insurance options. That's okay. That's okay. Now, next time when I ask a question, guys, there's a button down there in the reaction that says raise hand. Raise your hand and I will ask that person. Okay. So good. Insurer is the insurance company. Who is insured? Okay, Saad, go ahead. इंश्योर्ड मीन्स द पर्सन, जो भी हमारा क्लाइंट है उसने अगर प्लान लिया हुआ है तो वो इंश्योर्ड है. So client can also be a policy owner. Who is a life insured? जिसके लिए हमने वो ली हुई है पॉलिसी. Okay, so the person who is actually whose life is insured or the person whose income is protected is known as insured. Okay, because client can be policy owner. He is my client technically, right? There is a difference between insured and policy owner. With this, I think policy owner is also clear to everyone. Uh, Next question I want to ask: who will tell me who is captive agent? Hassan? Agent is. Hassan, Hassan, unmute yourself first. हसन, वहां पे नीचे बटन होगा म्यूट का, अनम्यूट का ना, लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो अनम्यूट हो जाएगा. वीडियो के साथ बटन होगा. Now you're not able to find it. Yes, you're. आ रही है Yes, अब आ रही है. Yes. जी. कैपिटिव एजेंट जो एक जिसके पास सिर्फ एक कंपनी की इंश्योरेंस वो सेल कर सकता है, मतलब सिर्फ एक कंपनी के ही उसके पास है, उसको कैपिटिव एजेंट कहते हैं. ठीक हो गया. Let's say I'm going to give an example. Anybody will tell me the answer. Okay. So Asad Raza is providing A, B, C, D products from Manulife. Is Asad Raza independent agent or a captive agent? कैपिटिव एजेंट. Captive agent. Good job. Okay. Mute yourself, Hassan.
And independent agent is one that how we are in WFG. We can provide from multiple companies. All right. So next concept that Mehreen said is power of attorney. Very, very important question. I will, first of all, I will ask a scenario and then raise your hand who will answer that. Okay. So power of attorney. Let's say I'm giving an example right now. Jaya Pinnock is a very busy entrepreneur. She has her business in Canada. She has her business in Dubai. She has her business in Europe. So few days she spent in Europe, few days she spent in Canada, few days she spent in let's say somewhere else. Now she is concerned because her business in Canada is not doing great. So she want to appoint someone who can make legal and financial decision on behalf of Jaya in Canada. So now she's meeting a person. What documents she need to put in place to and what kind of documents she needs to get with the lawyer so that she can get rid of this thing. Saad, Power of attorney. power of attorney. Manur, are you clear with this question? All right. My next question is to Mahanur only to Mahanur. Okay. अभी क्या होता है कि while Jaya was in Europe, suddenly she got a disease that doctor says that Jaya is mentally incapable now. What is going to happen? Jaya appointed person B already as power of attorney. What is going to happen with this power of attorney when Jaya becomes mentally incapable? Mahanur, only you. तो सारा जो है वो जो जिसको इसने बाइनरी रखा हुआ है उसके पास चला जाएगा. No, so basically my question is Jaya has already appointed Asad as power of attorney. Now Jaya is in Europe. Jaya become mentally incapable. What is going to happen with that document? She has already assigned me power of attorney. What is going to happen with this document? So Okay, let's understand from Hassan. Hassan, can you tell? जी उसकी पावर अटर्नी खत्म हो जाएगी. अगर तो वो एंड्यूरिंग पावर अटर्नी होगी तो वो खत्म नहीं होगी. अगर खाली पावर ऑफ अटर्नी का पेपर उसको देगा तो वो खत्म हो जाएगी क्योंकि वो मेंटली इनकैपेबल हो गया. Right? Beautiful answer. So if Jaya did not make me enduring power of attorney, the moment she become mentally challenged, I'm gone, null and void. But if she has assigned me enduring power of attorney, then even though she is mentally incapable in Europe, I will still be able to make decision on her behalf. Right? So Manur, important is we have to learn the concept. This is a question I can guarantee you this is gonna come and will be tested in the exam. Concept is very important. Okay. All right. So my next question. I think Mehreen, tell me whether this page is done. Any concept on this first page is remaining or not? Good. No. Okay. Turn the next page and give me all the headings on the page 2 from the page. Okay. So it's difference between marriage and common law spouse, Okay. will, Mm-hmm. executor, Okay. then tort, What? tort, T-O-R-T. Forget about the okay. All right. I will write it down. Or what else? Coordination of benefits. Benefits. Coordination of benefit. Okay. This is That's all. only page 2. Okay. Let's talk about some of these things. Okay. So first is marriage versus common law. By the way, who is iPhone here? Me. So Abira, अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर लो. It's decorum. Formal call है. जी जी. So guys, now let's talk about marriage versus common law. Who is Manur, because you're the one and Abira is the one who have to pass ethics. Mehreen is done with this. So I will ask most of the question to you and Abira, okay? It's just to help you guys prepare better. And answering people will be myself, Mehreen, Saad, and also Hassan, right? So let's talk about this. Mahanur, to you. Marriage versus common law. What is the major difference between these two things that we need to make sure that we remember? Mahanur. So marriage is they are certified marriage.
And What? common law is that the Yeah, go ahead, go ahead. marriage is that they are legally married, and they can like the spouses can buy for each other, right? Okay, let me ask you, let me revise my question so it's going to be easier for you to answer. Okay. Let's say uh, two people are married, so you call the other person as spouse. These are Yes. spouses. But if two Yes. people are not married or only in common law relation, they are not called as spouses. Fair enough? No. First of all, Yes. this is the thing. Now, I'm talking about a separation or divorce case now. So I'm give Yes. you a story, Mahanur. You have to tell me the answer. Story is person A, let's say Aslam and Hina, they were married together for 5 years, right? And now Aslam and Hina together bought a house, which is $500,000 house, right? And they also saved $200,000 together in 5 years from their job, right? Now situation becomes like that they need to get a divorce somehow. Okay, so what can actually Hina claim from his husband, her husband? What can she get from the husband? Everything half. Everything is half. Yes. Okay, what she is not able to get it. Now that's another concept. Anything that's inherited from his or his family. Can you give me example of any inheritance that people receive? Uh, A Example. gift, a gift they A gift receive inheritance. like a house जो कि बैक होम है होगा, जो हम्म, उनकी फैमिली ने उनके उनके नाम पे किया हुआ है, तो वो उसके स्पाउस को नहीं मिलेगा, ठीक जस्ट है, बिकॉज़ कि उसकी फैमिली के थ्रू है, ठीक तो है, वो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल है इस कंट्री के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को अपने पेरेंट्स ने लाइफ इंश्योरेंस में मुझे बेनिफिशियरी रखा हुआ था, एंड चाहे मेरी मैरिज हुई भी है बट मुझे वहां से पैसा मिल रहा है, समथिंग हैपेंड टू वन ऑफ माय पेरेंट, आई गॉट मनी फ्रॉम दैट, हुँ, चाहे वो हुँ, शादी हुँ। के बाद हो, वो डिवाइड नहीं होती है। सो नहीं, हाँ, इनहेरिटेंस विल नेवर बी डिवाइडेड। अच्छा, हाँ, अभी क्वेश्चन ये है कि एक कॉमन लॉ पार्टनर जो है वो आपस में सेपरेट हो रहे हैं, तो मुझे बताओ हुँ। वो कॉमन लॉ स्पाउस जो है वो क्या क्लेम कर सकती है दूसरे स्पाउस से और क्या नहीं क्लेम कर सकती? जो उन्होंने इंश्योरेंस में ही है, वो ही क्लेम हो सकता है, उसके अलावा दे कांट लाइक एनीथिंग, दे कांट डिवाइड एनीथिंग इन Marine, बिटवीन can देम। you explain if a separation happens between common law partner, what common law partner can claim from the other spouse? सो स्पाउसल बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं उससे, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलेगा। जबकि अगर कोई मैरिड कपल होगा, तो वो स्पाउसल बेनिफिट्स के साथ-साथ जो भी ये प्रॉपर्टी शादी के बाद जो ली गई है, शादी से पहले वाली नहीं, अगर कोई इनहेरिट कर रहा है कोई चीज़ पहले, ठीक है, तो वो भी नहीं। लेकिन हाँ, जो शादी के बाद कॉमनली कोई प्रॉपर्टी ली गई है, किसी का भी शेयर ज़्यादा हो, किसने, देन वो उसको हाफ एंड हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया, गुड वन। एक और चीज इसमें ऐड होनी पड़ेगी कि अगर कॉमन लॉ पार्टनर है तो वो स्पाउसल सपोर्ट भी मांग सकते हैं, ठीक है? मतलब उस गारंटी नहीं है कि मिल जाएगी, बंदे के ऊपर है या बंदी के ऊपर है, बट मांग सकते हैं। चिल्ड्रन सपोर्ट तो मिलेगी ही मिलेगी। जो चाइल्ड सपोर्ट है दैट हैज टू बी डन, बट स्पाउसल सपोर्ट दे मे आस्क, मे गेट, बट प्रॉपर्टी में कोई डिवीजन नहीं होगी अगर अगर प्रॉपर शादी नहीं हुई थी तो। फेयर इनफ। तो अब वो स्टोरीज के गिर्द घुमा फिरा के कुछ भी दे देंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। फेयर इनफ गाइस? यस। Jaya, are you with me? I'm doing a little bit Urdu English mix, right? So I hope you're getting it. All right. So next thing is will. विल जो है इसको मैं ही समझा देता हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, पहले विल का कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो विल जो है ना वो बिल्कुल पावर ऑफ अटॉर्नी से डिफरेंट है। सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो विल वाले और पावर ऑफ अटॉर्नी के आएंगे उनमें ये दोनों चॉइसेस ऑलवेज होती हैं, विल भी होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी भी होती है। आधे लोग तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो विल एक पीस ऑफ पेपर है, दिस इज अ विल गाइस। ये एक विल मैंने लिख दी है। इन विल आई मेंशन्ड 25% of my asset is going to Iman, 25% is going to Harim, 25% is going to RS, and 25% is going to my wife Kamal. तो मैंने ये विल लिख दी है। अब एसेट डिटरमिन करना तो विल का काम नहीं है ना, ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि जब फाइनल फिगर आ जाएगा
जो भी मामला होना है, तो बस अब ये फाइनल फिगर ऐसे डिवाइड करना है. दैट इज ओनली विल. इट ओनली गिव्स यू अ लेटर ऑफ डायरेक्शन, बट इट डज नॉट डिटरमिन व्हाट इज द एसेट वैल्यू दैट विल बी डिवाइडेड. फेयर इनफ. तो विल का काम एक पीस ऑफ पेपर है. बिफोर जो स्टेट आपकी होती है उसको कैसे डिटरमिन करना है, उस प्रोसेस को कहते हैं स्टेट प्लानिंग. क्लियरली याद रखना आपने माइंड में. स्टेट प्लानिंग विल डिटरमिन द फाइनल वैल्यू जो डिवाइड होगी, तब विल जो है ना पिक्चर में आएगी. उससे पहले विल का कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो बस एक पेपर ही है. जब फाइनल स्टेट वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, नाउ यू कैन डिवाइड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू विल. यस मेहरीन, यू वांट टू से समथिंग? ओके, ऑल राइट. सो दिस इज विल. ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? अगर समझ में नहीं आया कि विल क्या है, क्योंकि इस कंट्री में आपको बहुत सारे लोग, जब आप किसी को बताने जाओगे कि यार लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन दिस कंट्री, तो वो कहते हैं कि कोई इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमने तो विल लिख लेनी है, हमने तो विल लिख लेनी है. तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको पता भी है कि विल लिखने से इस कंट्री में क्या होगा? विल तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है. वो तो आप लिख के ये बता रहे हो कि भाई 20% इसको जाएगा, 40% इसको. बट अगर आपके स्टेट में से 50% वैसे ही कट गया है, तो जो बचा कुचा है उसका 20% जा रहा है. यू नीड टू मेक श्योर कि आप स्टेट प्लानिंग को अंडरस्टैंड करो. विल ने तो अपना काम बाद में करना है. तो फिर लोग कहते हैं अच्छा ये तो हमें पता नहीं, अच्छा अभी बताओ. नाउ दिस यू सेट अप अ मीटिंग विद देम. फिर आप उनको एजुकेट कर सकते हो. दे विल बिकम योर क्लाइंट, ना कि आपके क्लाइंट बनेंगे. 3600 रेफरल भी देंगे आपको, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ एडिशन किया है, वैल्यू एडिशन किया है. साउंड्स गुड? Yes. ओके, नाउ अनदर टर्म इज एग्जीक्यूटर. एग्जीक्यूटर, अब विल मैंने लिखी हुई है, ये विल एग्जीक्यूट भी तो करेक्ट कोई कराएगा ना, क्योंकि मैं तो मर गया. ये जब विल कब रोल प्ले करेगी, जब मैं हूं ही नहीं. तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं किसी एग्जीक्यूटर का भी नेम दूंगा. आई विल नेम समबडी एज एन एग्जीक्यूटर who will execute this will on my behalf. Do you think that executor will do it free of cost? Do you think No. that guy is on job, उसकी भी job चल रही है, he is doing stuff just because for my sake he will quit his job, do whatever, and he will come for 30 days and try to find out these people and give the share? Do you think anybody will do that for free? No. No. Executor is a person who may be a lawyer, maybe somebody that you will name, but I tell you that person will bill your state. He will make a big bill and will charge on your state. वो पैसा भी वहां से निकल जाएगा. So when people tell me, I go to them, I tell them about life insurance is very important, you have to have it. वो कहते हैं कोई बात नहीं, वो हमारे अकाउंटेंट ने बोला था कि हम जो है ना तुम्हारी विल हम देख लेंगे, तो कोई मसला नहीं है, तुम्हें किसी इंश्योरेंस की किसी चीज की जरूरत नहीं है. तो मैं उनसे यही क्वेश्चन फिर पूछता हूँ, आपको पता है कि आपका अकाउंटेंट उस वक्त तक जी रहा होगा जिस टाइम पे आप ये कर रहे होगे? पहली गारंटी तो अगर ये तो बता दो. और दूसरी गारंटी, दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि आपके पेरेंट्स जिंदा हैं कि नहीं हैं? इन केस अगर किसी के नहीं होते, तो मैं उनको पूछता हूँ कि क्या आप अपनी माँ मम्मा पापा के जानने वालों से मिलते हो भी जाके, जिनको वो जानते थे? तो आपको क्या लगता है कि आप आपका अकाउंटेंट हो, आप कल आपके बाद आपका अकाउंटेंट आपके बच्चों को जानता होगा, मिलेगा उनसे? भाई कुछ नहीं होने लगा. तो मैं उनको ये कहता हूँ कि वो अकाउंटेंट आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी कुछ ये ना लो, क्योंकि दे वांट टू मेक मनी फ्रॉम यू after you are not there. That's why they're gonna bill it massive. So whenever somebody is telling you that I have an accountant, that accountant will take care of my things, ask the person, do you have a guarantee when this all happens your accountant will be alive? Number one thing. Secondly, do you think your accountant has the same relation as you have with your accountant, as your accountant have the same relation with your kids and beneficiaries? Do you think your beneficiary know your accountant? They are gonna go to him. And for last question, do you think your accountant will do this for free? No. So please, for God's sake, when your accountant and lawyer tell you, I have you, I will take care of you, that's the most bizarre thing in this world, in this country. Never ever believe in them, because they won't do it for free. That is why they are telling you, I am. असद भाई कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ ही खड़ा हूं. भाई मुझे क्या पता, आप मेरे से भी पहले चल पड़ो. Right? I need to make sure proper things. So executor is a person who will execute the will, not for free. He will charge your state. All right? Anybody? I'm using the word state. किसी को पता state क्या होता है? Anybody can tell me? Mehreen, yes. स्टेट जो आपकी जायदाद जो बचती है उसको कहते हैं, जो आपके मरने के बाद, ठीक है, और वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, जो भी, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट में है, एनीथिंग, दैट्स योर स्टेट.
जिसको पाकिस्तान में जायदाद बोलते हैं, उस वर्ड को बस फैंसी वर्ड उसका स्टेट है इस कंट्री में, सिंपल एज दैट। वो उसमें कोई और चेंज नहीं है। जो चीज जायदाद में बढ़ती है पाकिस्तान में, वैसे ही यहाँ आपके पास सारी स्टेट जायदाद कैलकुलेट होती है। पाकिस्तान में वो टैक्स फ्री चली जाती है, यहाँ पे बस पहले सीआरए आ जाती है और उस पर स्टेट टैक्सेस मांगती है। इसके लिए स्टेट प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक हो गया? वेरी सिंपल। एवरीबडी इज विद मी ऑन दिस पेज? हाँ, और ये वाली स्टेट जो है वो STATE नहीं है, ये हाँ हाँ, ES है। ये ईएस वाली स्टेट है। ये वो स्टेट वाली नहीं है कि कह दो, कह दिया। वो मुझे वो गाना याद आ गया जो मैं उसका गा रहा था, पता नहीं किसी इवेंट पे। क्या यही प्यार है वाला? तो हाँ, यही प्यार है, कह दिया। स्टेट वाला नहीं है ये। ठीक है। ऑल राइट अबीरा, ऑल गुड? Yes, all good. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट ही हमने कर लिया। टॉर्ट मुझे भी नहीं पता, टॉर्ट आज तक तो कभी किसी ने पूछा नहीं, इसको छोड़ दो। ये इसका कोई मैं क्वेश्चन? बताऊं? हाँ जी, बता दो प्लीज। A breach of privacy obligation of an agent could lead to civil action against the agent in tort. सादा लफ्जों में In बता। court. बेसिकली जो है, अगर किसी प्राइवेसी का ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑब्लिगेशन किसी एजेंट ने किया है, आपकी कोई इंफॉर्मेशन जो उसको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, हाँ हाँ, ठीक है, और जो उसके खिलाफ सिविल एक्शन होता है, ओके उसको टॉर्ट कहते हैं। ओके। तो अगर मैंने यू फोन को डेटा बेच दिया है लोगों के नंबरों का, तो अगर उसने हम्म एक्शन ले लिया है तो वो टॉर्ट है। हम्म बस ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ क्योंकि वो फिर भूलती नहीं है चीजें। राइट। सो ठीक हो गया, गुड वन। अभी फाइनल आ गया है कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। मुझे ना जैसे इससे एक चीज याद आई। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी सॉरी। जी हाँ जी, मुझे मनूर इस बोलो। चीज से वो बात याद आ गई, वो जो थ्री इडियट्स वाला सीन होता है। बोलो। आसान लफ्जों में समझाओ। हाँ। सर थोड़ी देर पहले वही समझा रहा था। सही है। तो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। वर्ड कोऑर्डिनेशन मींस कोऑर्डिनेट, राइट? कोई चीज आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है। सो कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट जो है ना, रिमेंबर दिस थिंग अबाउट whenever you are getting some benefits from your employer, कंपनी से बेनिफिट जब आपको मिल रहे हैं, आपकी वाइफ को मिल रहे हैं या आपको मिल रहे हैं, as long as you are not paying towards those benefit separately, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट इट। महानूर हैं और इनके हस्बैंड हैं। महानूर जिस कंपनी में काम करती हैं, वो कंपनी महानूर को एक डेंटल बेनिफिट देती है इनकी फैमिली के लिए। इनके हस्बैंड भी जहाँ पे काम करते हैं, वो भी इनको डेंटल बेनिफिट देती है। ठीक है। अब इन दोनों चीजों में महानूर और उनके हस्बैंड कुछ अपनी जेब से नहीं पे करते हैं। ठीक हो गया, उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। महानूर की बेटी है या बच्चा है, वो उसको डेंटल, उसको कुछ चाहिए, कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये जाते हैं डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट जो है ना, ये अपनी पॉकेट से भरते हैं पैसा, डेंटिस्ट जो है ना बिल बना के देता है। अभी महानूर अपनी कंपनी में क्लेम डालती है। ठीक है। कंपनी ने क्लेम अप्रूव किया, महानूर के अकाउंट में पैसे आ गए $2000। अभी कोई तीसरा बंदा बाहर से, एक बहुत चौधरी साहब जो ओपिनियन देने निकल आते हैं, मेनी पीपल, वो आ जाएंगे, वो कहेंगे महानूर ऐसा करो, ये अपने हस्बैंड को भी बिल दो और उसकी कंपनी में भी क्लेम कर दो, 2000 वहां से भी निकाल लो। राइट? कुछ ऐसे फ्री वाले एडवाइस देने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं ना। अभी महानूर क्या करती है, अच्छा उसकी बातों में आती है, चल ठीक है, ये बिल पकड़ा, अभी अपने हस्बैंड को भी कहा आप भी करें ना जरा, आप भी जरा इसको करें ना क्लेम थोड़ा सा। तो अभी वो क्लेम करते हैं और हस्बैंड साहब को एक ईमेल आ जाती है कि नो, व्हेन वी पुट दिस क्लेम इन, we get to know that it is already paid from that insurance company, and why are you doing this? Write as the reason. उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। कंपनीज ने एक दूसरे से नेटवर्क बना रखा है। ऐसा नहीं होगा कि आप पागल बना दोगे उनको कि आपने यहां से भी क्लेम कर, द मोमेंट क्लेम जाता है ना, वो सबसे पहले क्लेम को देखते हैं कि ये किसी और कंपनी ने पे तो नहीं कर दिया। अगर ये पेड हो गया है तो वो डिनाई कर देंगे। फेयर इनफ। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। So you cannot deceive Canadian system. It's a very regulated system. आपको बेनिफिट जो मिला है वो एक जगह से मिलेगा। दे विल मेक श्योर कि वो कंपनी ने पे कर दिया है। सो फार सो गुड, राइट? अभी कहानी में ट्विस्ट लाता हूँ, चेंज करता हूँ कॉन्सेप्ट एक और। अब आपने इस कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट को ना हर चीज पे अप्लाई नहीं कर देना, ये कहना चाह रहा हूँ। आपने इसको अप्लाई करना है उस चीज पे जिसमें आपको बेनिफिट, ग्रुप बेनिफिट मिलते हैं कहीं से, ये वहां पे अप्लाई होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट इज ओनली अप्लाइंग व्हेन यू आर गेटिंग ग्रुप बेनिफिट। ग्रुप बेनिफिट कहाँ से मिलते हैं? जो आपकी कंपनी एम्प्लॉयर देता है, वो सभी को दे रहा है, तो वो है ग्रुप बेनिफिट। तो ये कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ग्रुप बेनिफिट पे, इंडिविजुअल पे नहीं होता। ठीक है। अभी कहानी में चेंज क्या है कि महानूर ने एक 2018 में somebody केम टू महानूर, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे हैं छोटे, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो $2 लाख की। इन्होंने ले ली, $60 का प्रीमियम पे करना शुरू कर दिया उसके ऊपर।
2 सालों के बाद 2021 में वही एजेंट दोबारा आया रिव्यू करने के लिए। उसने कहा कि आप लोगों की इनकम बढ़ गई है, नीड्स बढ़ गई हैं, एक काम करो 3 लाख की एक और ले लो। तो उन्होंने $120 की 3 लाख की एक और ले ली, पुरानी कैंसिल नहीं कराई। पुरानी भी $60 की चल रही है, नई भी 120 की चल रही है, तो शी इज पेइंग $180 एंड कीपिंग बोथ। गॉड फॉरबिड 2025 में शी इज नो मोर। तो अभी महानूर की फैमिली को कितने पैसे पे होंगे? महानूर, यू आंसर द क्वेश्चन। 2 लाख की पहले थी, 3 लाख की बाद में आई थी। थिंक दोनों की तरफ मतलब तो कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट, दोनों की तरफ से आएंगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट नहीं फंस जाएगा आगे बीच में? ओ ओ ओ नो, तो यही रोकना चाह रहा हूँ। तो ये वो इंडिविजुअल है, एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट फॉर डिफरेंट थिंग, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट नहीं बीच में आएगा, क्योंकि ग्रुप नहीं है। ये ऐसा है कि आप ही का प्लान था पहले, वो भी आपने लिया था, ये भी आपने लिया था, आप दोनों के लिए अलग अलग पे कर तो, रहे हो, तो तो दोनों आपको का पूरा डबल बेनिफिट मिलेगा पूरा दोनों। बेनिफिट मिलेगा। ठीक हो हाँ गया? मैंने पहले वही बोला तो बाद में मैं कंफ्यूज होगी शायद हाँ, इससे बेहतर मैंने है पहले कि वही बोला कि दोनों तरफ क्वेश्चन से आपको आ जाएगा। हाँ, इससे बेहतर है क्वेश्चन कंफ्यूज करे मैं ही कर दूंगा, ताकि आप यहीं पे गलत आंसर करके सही कर लो। क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। गुड ठीक है? गुड ट्रिक। तो आप अच्छा मुझे लग रहा है आपकी भी कट रही है मेरी तरफ से, शायद डबल डबल आ रही थी। बाकियों को भी लग रहा कुछ है। हो रहा है कनेक्शन प्रॉब्लम आई गेस। आई थिंक दिस इज थोड़ा सा इंटरनेट जहाँ पे वीक है ना, आपको ये ज्यादा फील हो रहा है। आई थिंक एवरीबडी एल्स इज गुड। क्या सब ठीक है। गोना बी एट योर एंड? शायद मेरा ही प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ क्योंकि मुझे अपनी भी अपनी तो भी सही आ रही है, बाकी आपकी भी जैसे आप कह रहे हो ना कट कट के आ रही है, वैसे मुझे आपका भी कट कट के ही आ रहा है इस तरह से। अभी तो तो शायद तुम्हारी मेरा ठीक ही आ रही है प्रॉब्लम मेरी। होगा आई थिंक सो। चलो, हाँ एनीवेज, दिस इज गुड गाइस, इट्स ओके। हाँ सेकंड पेज इज डन, राइट? हम्म, मेहरीन जरा थर्ड पेज बताओ। It's federal government sponsored plan. ओह, CCP, सीपीपी। sorry, CPP, किसी भी OA, हाँ, सीपीपी, ओके ओके, गो अहेड। OAS, हाँ, GIS, यस, EI, हाँ, then provincial government plans. ओके, No डब्ल्यूसीबी, for, yeah, no for automobile insurance. ओके WCB, ओके universal health care and drug plan. ओके, बस छोड़ दो यहाँ तक। और भी है कुछ? हाँ, छोटा सा है फिर। क्या है? Acts Privacy Act and ओके, पाइपेड PIPEDA. Yeah. all right, good one. So these are very very important federal and provincial plan. You know, people come to this country for these benefits actually, whatever Marine told। इसमें एक बेनिफिट ऐड कर लो, वो जो नहीं बताया वो है चाइल्ड केयर बेनिफिट, CCB, जो बच्चों का बेनिफिट गवर्नमेंट पे करती है। दैट्स द ओनली बेनिफिट विच वाज मिसिंग इन दिस वन। बट लोग कनाडा ना इन बेनिफिट्स के लिए आते हैं, बताओ नहीं आते क्या? है ना? और पता है क्या, 40-40 साल गुजार जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता ये बेनिफिट की कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेजेडी की नहीं ट्रेजेडी? राइट, दैट्स हाउ पीपल आर सो इग्नोरेंट। सो अ, ये जो 40 साल है ये तुमने मेरे ऊपर मारा है, किसके ऊपर मारा है? भाई वो, अब वो मुझे 40 चोर साल की दाढ़ी कनाडा में, में नहीं आए हुए, चोर दुनिया में चोर आए हुए। चोर की दाढ़ी में क्या होता है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। But anyways, I'm just not saying this. It's my random. I see a lot of people, and उनका यही हाल है. You know, nobody knows about these things. You know, Jaya's dad is there. Probably if I'm gonna ask Jaya's dad how CPP is calculated, he's gonna say, I don't know. They are here for many years now, right? So by the way, these are important plans. Mahanur, तुमने पढ़ा है, अबीरा तुमने पढ़ा है. You guys will tell me what is CPP. Mahanur, क्योंकि मैं पता लगा लूंगा कि आप लोगों ने वीडियो कैसे वॉच की है। इफ यू आर नॉट गुड एट द कॉन्सेप्ट, देन फिर मैं आपको यही कहूंगा, गो बैक वॉच वीडियो अगेन, तवज्जो से देखो। मेरे ना अभी अब बस मेरीन मुझे ने पता मुझे लग गया। मारना है। मुझे मेरीन ने मारना है। मैंने 2 दिन पहले ही मेरीन को बोला, मैंने कहा मेरीन मेरा ना अच्छा टर्म मुझे मेरीन नहीं बताया, फॉगी ब्रेन। तुम्हारा ना फॉगी ब्रेन चल रहा है क्योंकि तुमने अभी बेबी पैदा किया है। मैं मेरीन को बोल भी रही हूँ। 2 दिन पहले मैं अपनी अपनी सिस्टर इन लॉ के सामने रो भी रही थी अभी क्योंकि मुझे बात बताओ, टर्म्स याद ही नहीं हो रही है यार। नहीं मैं नहीं, एक सुन बात बताओ, देख रही हूँ, लेट मी मुझे आस्क याद यू ही नहीं हो क्वेश्चन। रही है। तुम हस्बैंड को खाना टाइम पे दे रही हो? नहीं, वो भी आके चिल्लाते हैं कि तुमने खाना नहीं पकाया, तो मैं कॉल तो की थी थोड़ी देर पहले। मैं कहा अच्छा, बिल्कुल दिमाग से निकल गया, अभी करती हूँ। तो मम्मी पापा को कॉल करना भूल रही हो आजकल? हाँ, सुबह ही गाली खाई है मैंने। तो बस फिर ठीक है, फिर मैं मान जाता हूँ कि मेरा ना फॉर्टी बहुत चलता आउट होगा। चल फिर रहा है। काम, मैंने ये बता रही काम हूँ फिर ना, नहीं हो रहे हैं, मुझे तो फिर बोले ये कि तुमने फिर वो मैं नाम ले लिया, बट मैंने बोला इसको। मेरा आउट चल रहा है।
Anyways, let me explain it to you. CPP क्या है guys, जो मैं बताऊंगा उसको गौर से सुनो, मैं एग्जांपल देके बता। Yes, साथ you want to add something? बता दो। या कैनेडा पेंशन प्लान। ओके, अभी इतना सा नहीं, ये तो सभी को पता है। दिस एवरीबॉडी नोज। उधर अनम्यूट रखो, अभी तुमने बोल ही लिया है तो लेट मी जस्ट हैव यू मोर हियर। सो साथ अभी बोल। CPP, yes, so CPP, what age CPP starts? साथ what age CPP starts? 65. अबीरा साथ से पूछ रहा हूँ। Oh, sorry. 65। ओके, सो साथ मैं एक स्टोरी देके बता रहा हूँ, मुझे बताना कि CPP क्या है। ओके, दो लोगों के एग्जांपल हैं। पर्सन ए, वो सारी जिंदगी जो है ना CPP ज्यादा पे करता रहा, ठीक है, क्योंकि उसकी जॉब की इनकम ज्यादा थी। CPP कटती है आपकी जॉब की इनकम के हिसाब से 10.5%। दूसरा पर्सन बी एवरेज जॉब में इनकम कमाता था, तो वो उसके हिसाब से 10.5% पे करता था। दोनों ही लोग रिटायरमेंट पे 65 की एज पे पहुंच गए हैं अभी। तो CPP दोनों को एक सी मिलेगी या किसी को ज्यादा कम मिलेगी? साथ नहीं, दोनों में डिफरेंस होगा। किसको ज्यादा मिलेगी, किसको कम मिलेगी और क्यों? जो ज्यादा पे कर रहा था, हम्म मतलब जिसकी इनकम ज्यादा थी, उसको ज्यादा मिलेगी। क्यों? और बस जिसकी उसकी इनकम वजह कम, क्या है कि इनकम ज्यादा थी इसलिए ज्यादा मिलेगी? क्योंकि उसने टैक्सेस ज्यादा पे किए हैं। उसने इनकम ज्यादा थी तो उसने 10.5 भी ज्यादा हुआ ना, तो उसका कंट्रीब्यूट हुआ। सो दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। अभी ओके, माय क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, CPP ये याद रखना है आपने, ये चेंजेबल बेनिफिट है। जिसने जितना कटवाया है ना अपनी जॉब में, उसको उस हिसाब से आएगा। अगर किसी ने जॉब्स ही पे ही कम किया तो उसको CPP भी रिटायरमेंट के बाद कम मिलेगा। इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज 65 पे स्टार्ट होता है ये, ठीक है। एंड टू बिकम एलिजिबल फॉर CPP, योर ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आपने एम्प्लॉयमेंट पे किया। अगर किसी बंदे ने CPP पे ही नहीं किया, जॉब ही नहीं की इस कंट्री में, उसको मिलेगा CPP? गुड। सो जिस बंदे ने यहाँ जॉब नहीं करी, लेट्स से कोई, मैं अपने पेरेंट्स को बुला लेता हूँ यहाँ पे, और वो आके यहाँ जॉब ही नहीं करते, और कोई उनको बाहर से गली में से कहता है आपको CPP आ रही है, और वो मुझे आके कहते हैं बेटा हमें तो CPP नहीं मिलती, ये कोई कह रहा था CPP मिलती है। तो ऐसे बहुत कहानियां होती हैं, ठीक है। तो CPP जब आपने कटवाई नहीं है तो आएगी भी नहीं। क्लियर? ऑलराइट। सो सेकंड क्वेश्चन, ओल्ड एज सिक्योरिटी, OAS, सेकंड रिटायरमेंट बेनिफिट। OAS का सिनेरियो ये है कि इसके लिए आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता अपने पेचेक से या अपनी जॉब से। सो दिस इज अ बेनिफिट दैट गवर्नमेंट गिव्स, एंड दिस बेनिफिट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी years you reside in Canada, your merit, आप कनाडा में रहे हो। your marital status, and your spousal income. Based on these three things, it is determined that how much you will get paid. All right. So based on how many years you've been living in Canada, your marital status and your spousal income, right? So marital status से ही निकल आती है basically. That will depend how much old age security you will get. Now, there is a question that they test in the exam from OAS. क्वेश्चन ये है, मैं सिनेरियो बताने लगा हूँ और आंसर करेंगी महानूर, ठीक है। सिनेरियो ये है कि मैं आई वॉज 56 years old when I came to this country, and now I'm 65 years old, and I'm worried I'm not receiving any old age security. मैं अपनी एडवाइजर महानूर के पास आता हूँ, मैं उसे कहता हूँ मुझे ओल्ड एज सिक्योरिटी नहीं आ रहा। महानूर, व्हाट वुड यू डू? टेल मी। जब तक हम ये चीज नोट से देखेंगे तब तक एग्जाम पास नहीं होगा। जब ये चीजें ब्रेन में आ जाएंगी तो ही हो जाएगा। नहीं, मैं आपको एज लिख रही हूँ सर। ओके, ऑलराइट। डिग्री पे आप अच्छे थे, 45 आप नहीं वरीड मनी, अबाउट तुम्हारी इट। आवाज तुम बहुत कैलकुलेट कट रही है, समझ में टेस्ट नहीं आ रहा। पूरे नहीं हुए। मिनिमम 10 डेज जो है अभी। से इट अगेन। आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट कनेक्शन। एनीबॉडी कैन, अबीरा, सेम क्वेश्चन टू यू, तुम बताओ। रिपीट करेगा क्वेश्चन? मैं क्यों रिपीट करूंगा? नोबडी इज पेइंग मी फॉर रिपीटिंग। यू शुड बी पेइंग फुल अटेंशन हियर, आई एम नॉट रिपीटिंग एनीथिंग। कोई कौन बताएगा महानूर को मैंने क्वेश्चन क्या किया? सॉरी, अबीरा को। समथिंग रिगार्डिंग ओएएस, मैं वहां तक लेट मी टेस्ट अबीरा, सिर्फ किसी और से पूछता हूँ, बाकी भी टेंशन पे कर रहे हैं कि नहीं। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? OS सिक्योरिटी का कि CPP नहीं, तो OS हाँ, के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ओएस के नहीं, मैंने लिए ये क्वेश्चन नहीं रिक्वायरमेंट पूछा। है बाय द वे, स्टॉप इट, कि स्टॉप इट। मैंने तो ये क्वेश्चन मेहरीन नहीं पूछा, ये किधर से आया क्वेश्चन? I thought this is the question, नहीं क्योंकि नहीं, मैं इसका साथ मतलब साथ जो है, आप भी हाँ, मैंने देखो। नहीं अटेंशन पे की क्योंकि I was just working with something more.
ओके ओके, सो टेंशन पेइंग, दैट्स गुड, अभी पता चल रहा है मुझे। साद, हाँ क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? वैसे मेरी भी 100% नहीं थी, लेकिन मुझे जितना Look पता है मैं at बता that. देता हूँ। Look at that. हाँ, अब हम Look at सारे that, पकड़े गए guys. ना। Look at that. अच्छा, So me paying आपने attention and कहा I'm licensed. नहीं, I'm सुने licensed नहीं, for 3 सुनता years and I'm paying सुनता attention. नहीं, See, सुनता नहीं, क्या पता मैं सही कह Hassan, दूं। आपने कहा कि अब मुझे ना वो डेट नहीं याद कि आपने कौन से ईयर का कहा। असल में जो जो 15 साल रहता है ना कनाडा में, no, no, उसको stop, मिलता है stop, stop, stop. I don't want it. It's 10 wrong. साल 10 Wrong साल जो रहता information. है, Wrong मैं बोलूं? information. हाँ मैं इट्स क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ मैं अभी। no, भी it's for 10 years साद, it's not for हाँ 15 years for sure. 15 ये 10 years के लिए है। Listen, my question again. My question is, I came to this country when I was 56-year-old. Now I'm 65, and I'm wondering, my other fellows who are 65, they are receiving old age security benefit, and I am not getting it. My advisor is Abira, and I called Abira. Abira, I am not getting OAS benefit. What would you tell me? हाँ 65 10 साल हो गया। एक्चुअली इसमें देखें, सबसे पहले तो एक तो 10 इयर्स पे आप हो जाएंगे तब एक आपको मिलेगा, और 65 आपकी एज होनी चाहिए। Hmm. ओएस ठीक है, Hmm. उसके उस पे मिलेगा। अगर आप 10 साल कनाडा में रह चुके हैं, सो यू विल अचीव इट, ठीक है। और मुझे सीधा यही बताओ ना, मुझे बताया मुझे बताओ ना सीधा, डर डर के क्यों रहे हो? अबीरा मैंने कैन खुल आई के बताया कैन था मुझे। नहीं मैं कंफ्यूज बताती कर दिया हूँ। मुझे, मैं मतलब भूल गई अच्छी भली, नहीं याद सब अबीरा, कुछ याद। लिसन, ही हम्म, सेड 56 इयर्स की एज में आया हूँ, 65 हो गया हूँ, तो 9 इयर्स हुए टेक्निकली। हम्म। ओके, तो व्हेन अच्छा ही अच्छा, स्टार्ट गोइंग टू बी 66, तब उसको 10 इयर्स होंगे, देन ही गेट। Yeah, I will ओके ओके simply tell him, wait one more year and you will get it. That's it. My only reply will be this as an advisor. Okay, now another story. I'm gonna ask this to Hassan. Hassan, Abhi, I came to this country when I was 51-year old, right? I came to this country when I was 51-year old. After 65, I went back to Pakistan to enjoy my retirement. And I am not receiving my OAS. And you are the advisor. I called you from Pakistan. Hassan bhai, मुझे तो OAS नहीं आ रहा, जरा पता करना क्या होगा. What would you tell me? इसके लिए कम से कम 20 साल इसको बंदे को इधर कनाडा में रहना पड़ेगा। 20 साल अगर वो यहाँ पे होगा तो फिर वो अपनी कंट्री में जाके भी ये ले सकता है, तो आप अदरवाइज मुझे नहीं। एडवाइस कैसे करोगे? आप मुझे कहोगे असद भाई, अभी आपको जो है ना इतने साल शॉर्ट थे, आप जल्दी चले जी गए, अगर आपको पाकिस्तान में ही पैसा चाहिए ना तो आप 5 साल और कनाडा में गुजारो, फिर जाओ तो फिर आपको मिलेगा। तो एडवाइस तो हम ऐसे ही करेंगे ना किसी को, राइट? जी जी तो दिस इज OAS, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज GIS, गारंटेड इनकम सप्लीमेंट, राइट? गारंटेड इनकम सप्लीमेंट उन लोगों को मिलता है व्हेन पीपल आर रिसीविंग CPP. They are also receiving old age security, but still their income is very low. Then government give only those people GIS. So अरे GIS टैक्स फ्री होता है। not given to everyone. And Abira said rightly, this is the only government benefit which is tax free in Canada. CPP is taxable, OAS is taxable, EI is taxable, worker compensation benefit is taxable, child care benefit is taxable. Everything in this country that government gives is taxable. Only GIS, guaranteed income supplement is non-taxable benefit. Clear? ये question आ जाए तो गलत तो नहीं करोगे? एवरी बेनिफिट इज टैक्सेबल सिवाय GIS के। ओके, और GIS किन को मिलता है, बताएगा कोई मुझे दोबारा से? अभी आप बताओगी GIS कौन किन लोगों को मिलता है? जिसको जिसको सीपीपी, हाँ सीपीपी मिल जाए, जीआईएस मिल जाए, उसके बाद भी उनका इनकम लो हो और उनका एज 65 हो, तो उन्हें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जीआईएस था आई थिंक। तुमने तो पहले उसको तो पहले ही मिल रहा है GIS, अभी तुमने कहा उसको CPP मिल जाए, GIS मिल जाए, उसको डबल मिल जाएगा GIS। नहीं ना, मतलब कि AOS, उसको मतलब, सॉरी, CPP, say after me, CPP, सीपीपी, OAS, ओएस, GIS। जीआईएस। जीआईएस CPP, टैक्स फ्री है ना, मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं ना, जीआईएस कैसे मिलेगा? हाँ, कैसे मिलेगा? हाँ, तो जब ऊपर के दोनों चीजें मिल जाएगी ना, तो वो भी मिल जाएगा। सर भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं No, I'm not confusing, I'm अबीरा, just नहीं clearing. अभी क्या कहा उसने, देखो सुनो, क्लियर करो उसका कॉन्सेप्ट। अगर CPP और OAS, ठीक है, दोनों मिला के भी लोअर इनकम पे आ लो रही है, इनकम है, हाँ
तब GIS मिलेगा। अगर वो मिला के उसकी लोअर इनकम नहीं है तो नहीं मिलेगा। हाँ दैट्स हाँ द कॉन्सेप्ट। हाँ, कल को कोई ओके बंदा ऐसे ही सुन के किसी से आ जाए, लेट्स से आप उसके एडवाइजर हो, देखो लोग ना ऐसे ही करते हैं, मैं आपको रियल सिनेरियो के लिए मैं प्रेजेंट करता हूँ। हाँ अच्छा जी, सॉरी, मैं बोलो। ये वही बात बताऊंगी कि मेरे अभी कुछ टाइम पहले मीटिंग सैटरडे को, संडे को मीटिंग थी हमारी इधर। सैटरडे को मेरे घर पे बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड को RSP देने के लिए आए थे, RSVP जो भी होता है। तो मेरे फादर इन लॉ खड़े हो गए, उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे ना कि मेरा खुद दिमाग घूम गया कि अगर मेरा ऐसा कोई टाइम आया और मेरे सर पे ऐसे कोई अंकल खड़े हो गए और सवाल पूछने लग गए तो मेरा तो दिमाग ही घूम जाएगा कि तो वही है कि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे तो कोई ना कोई हाँ उठेंगे और आपकी पूरी धरती हिला देंगे वो, ठीक है ना। हाँ, फिर सही सही। उसके बाद कोई बात नहीं, आप आप आगे अपने मुझे पता है इंस्ट्रक्टर क्या को लेके कहोगे, जाएगा। आप आगे मुझे कहोगे हे हाँ हाँ, हम दोनों टीम बना के जाए, WFG मैं बैठ डजंट के मूव, सीखती फिर आप मुझे रहूं आगे बोलोगे WFG तो काम नहीं करता, WFG इज नॉट फॉर मी, WFG इज मैंने नॉट फॉर मी। मैंने पहले ही असद मैंने पहले ही असद के ऊपर थी चीजें थोपी हुई हैं। असद बोलेगा बीवी मुझे माफ कर तो ओके ऑसम, सो ये क्लियर हो गया ना, क्योंकि लोग पता क्या करते हैं, वो कोई बाबा जी कोई उनको मिल जाएंगे, वो कहेंगे यार मुझे तो ना OAS भी आता है, CPP भी आता है, GIS भी आता है, तुम्हें आता नहीं क्या। वो ये नहीं बंदा बताएंगे कि फौरन इनकम लो है। आएगा और आगे आके उसको उसको ये तो पता नहीं कि किसको मिलता है ये GIS, वो आते ही अपने एडवाइजर बीरा को कॉल करेगा, बीरा जी कमाल हो गया यार, आप मेरे एडवाइजर हैं 20 सालों से, आपने मुझे ये बेनिफिट ही नहीं आ रहा यार, मैं तो नहीं आपको रेकमेंड रेफर करूंगा कहीं पे। और अब बीरा जी को पता ही ना हो कि GIS किसको आता है, तो फिर क्या होगा, और बीरा जी कहें ये दिस बिजनेस इज नॉट वर्क फॉर मी, ये बहुत मुश्किल काम है, दिस इज नॉट हैपनिंग राइट। सो आपने उसको बताना है सर जी आपकी इनकम ना, आप शुक्र अदा करें, जाके 2 नफिल पढ़ के आए जरा जाए नमाज पे, आपकी इनकम है। तो जिनकी आप बात सुन के आए ना, वो दोनों चीजें लेने के बाद भी देयर इनकम इज वेरी लो, इसलिए उनको मिल रहा है। बी ग्रेटफुल, डोंट कंप्लेन, बी ग्रेटफुल। यही मैंने संडे का मेरा मैसेज था, बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। तो सर जी ग्रेटफुल रहें, फिर वो आपकी बात सुनेंगे। सो दैट्स हाउ यू लर्न थिंग्स एंड दैट्स हाउ यू टेल पीपल। सो फार सो गुड, बोरिंग तो नहीं चल रहा? लाइफ विद असद रजा इज नॉट बोरिंग एट ऑल, आई टेल यू ऑनेस्टली, दिस इज गारंटी। अच्छा, मैं साथ साथ जो हूँ ना, मैं कुछ काम कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। मैं तो आपको कैच करूंगा कहीं बीच में से। कर लेना मैं बता दिए, पहले ही बता दिए, क्योंकि मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है और कॉन्सेप्ट भी काफी हद तक क्लियर है। हो सकता है सवाल मिस कर जाऊं, मैं जवाब दे रही हूँ, बट एक्चुअली मुझे आई नीड टू आंसर फ्यू पीपल। ठीक है, करें करें आंसर करें हाँ, तो मैं साथ साथ टेक्स्ट कर रही हूँ उनको। करें। आपने मेहता जी की अदालत चल रही है साथ साथ, चलो। नहीं, बहुत देर से दिमाग आज महानूर से पूछना आज मेरा क्या हशर हुआ है। एनीवे Jaya, are you getting bored? You good? Your another task is to मैं learn. कहा मुझसे ना पूछना, मेरा खुद का हशर हुआ है। मैं बताऊंगी मेरी उनको बाद में, हम दोनों की बाद में रात में आधी रात को फोन Okay, होगा रोते so हुए। let's go on to the next one, which is a worker compensation benefit. Okay, worker compensation benefit is a provincial plan, not a federal plan. It's a provincial. Ontario का अपना होगा, Alberta का अपना होगा, provincial plan है. What is a worker compensation benefit? So worker compensation benefit plan is if you are working at a workplace and you get injured on that place, so you will be paid some money from this worker compensation plan. From this worker compensation plan, right? यहाँ से आपको पैसा पे किया जाएगा, but there are conditions to it. You will only get paid if you get hurt on your duty hours. Doesn't really matter किसकी mistake है, employer की mistake थी, आपकी mistake थी, it's your mistake, it's employer mistake, the workplace safety is not there, but you will get paid. Doesn't really matter which mistake or fault is this, but you will only be covered if you get injured during working hours. If you get injured at your home, do you think worker compensation benefit will pay you? No. What plan will pay you if you get injured at your home? A disability insurance will pay you. A disability insurance will pay you. Worker compensation benefit will not pay you if you get injured from at your work. And for disability insurance, what type of disability insurance? That you have your own personal disability insurance where you monthly contribute and have this plan. That plan will pay your bills during that time, not worker compensation. Okay. Any question about this? Is it good? All right. जिसको उबासियां आ रही हैं जाके वो फटाफट मुझे तो बहुत नींद आ रही पानी है, पी के आए, पानी पी के आए सुबह फटाफट। से नहीं सोई हूँ मैं। मैं सुबह उठी कब थी जरा ये बताना। सुबह उठी कब थी? मैं सुबह 7 बजे की उठी हूँ, अब मुझे नींद नहीं आएगी इस वक्त। हम भी उतने बजे के उठे हैं, हम तो फुली चार्ज हैं। आप चार्ज हैं? अरे वो हम फ्यूचर देख देख के चार्ज हैं, ये कहाँ जाने लगे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एनीवेज, ये जोक्स अपार्ट। सो
ओके, ईआई के बारे में क्या पता है? व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस? एनीबडी नोज अबाउट एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस? साद, यस। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है वो, अगर आपका एम्प्लॉयर जो है अगर वो आपको ले ऑफ कर देता है तो तब हमें गवर्नमेंट का ये बेनिफिट है, ये मिलता है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जिसे ईआई कहते हैं। और ये जो है 10 मंथ्स तक मिलता है, मतलब 54 वीक्स तक मिलता है। ओके, एनीथिंग, कैन यू टेल मी हाउ मच परसेंटेज मिलती है? और 55 to 60। 55 to 60% ऑफ आवर इनकम वो हमें मिलती है। ठीक हो गया। क्या ये टैक्सेबल होती है? हाँ, यस। यस। टैक्सेबल होती है, वेरी गुड। ओके, जब ईआई मिल रही होती है, अगर मैं कोई और जॉब शुरू कर दूं तो ईआई फिर भी मिलती रहेगी? नहीं, बंद हो खत्म। जाएगी। नहीं नहीं, बंद नहीं होती है, उसमें आपके कुछ आवर्स होते हैं, दैट्स अलाउड। अगर आप उससे ऊपर करेंगे तो वो बंद होगी, अगर आप उससे कम करेंगे तब वो बंद नहीं होगी। सो इफ यू आर रिसीविंग एन ईआई, अगर आपको ईआई मिल रही है एंड यू स्टार्ट डूइंग सम अदर वर्क वेयर यू अर्न इनकम, दैट इज रिपोर्टेड इनकम। सिन पे काम करते हैं, व्हेन यू वर्क ऑन अ सिन एंड यू गेट अ रिपोर्टेड इनकम दैट गवर्नमेंट नोज, देन दे विल एडजस्ट योर ईआई. If you're making more money than what you're getting from EI will be stopped. If you're making less from the other work, then EI will be adjusted. Let's say if you're making 500 from other work, before you were receiving 2000 EI, so EI will go to 1500 to make it coordination of benefit. Coordination of benefit, it's a group one, right? Again, but if you're earning now 2200 and EI payment were 2000, EI will be completely stopped. Are you guys with me on that? Fair enough? Yes. Okay, any one more question? Okay, I'm gonna give you a story. Let's see who answers that. So Asad works his own company and he is in this country for 10 years. He is a very honest person. He complies with all the government rules. He receives childcare benefits and other benefits at side by side as well. Right now, he gets injured and he is not has any source of income, and he's thinking that now EI will cover him. So tell me, my income was $100,000 that I was making. How much payment I will receive monthly? My 100,000 income was annual. Now tell me how much payment I will receive monthly from EI. Anyone who will get the answer to this question, I'm not lying, I will specially buy a pen and I will give that pen the next time I'll see that person in front of everybody. I'll take a photo if anybody answers this question to me. I cannot एग्जैक्ट repeat it वैल्यू। because I just मैं दूं? need it. I cannot repeat it. I just हाँ, need it. नहीं नहीं, जो मुझे समझ Okay, में wait, आई। wait, wait, wait. आपको जो समझ में आई वो नहीं. नहीं, So मुझे जो raise समझ your में hand पहले, if you want to answer. क्योंकि तुमने स्टोरी जो सुनाई है ना उसमें पहला जुमला ये अच्छा, सही। मुझे उन लोगों से पूछने थे जिन्होंने एथिक्स पास नहीं किया, उनको पहले चांस है. ओके, हसन, अबीरा, महानूर, कौन पहले जाएगा? यू गॉट द क्वेश्चन? पर्सन को मैं Yeah, I made 100,000. And yeah, so I got disabled and I'm not receiving any income now. So my income was 100,000. How much EI payment monthly I will get? Saad just told that you get 55% EI, right? So you get 55% and then divide by 12 to get monthly. Mahanur, निकालो यार answer. I want people to give me the answer. आसिफ भाई उसको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस मिलेगी या ये तो बात की बात, डिसेबल हुआ है, Okay, so you were saying that he will not get EI. डिसेबल इंश्योरेंस मिल जाएगी ना उसको? If he does not have disability insurance, then what? तो फिर तो ये मिलेगी. EI मिलेगी उसको. EI का कितना परसेंट मिलेगा, यही तो पूछा उन्होंने। Okay, guys, so don't waste your time because इसी तरह का सिनेरियो क्वेश्चन में पूछेंगे. माहिन, अब बता दो अगर तुम क्या कहना चाह रहे थे. इसने पहली चीज कही थी कि मैं काम करता हूँ, तो इट्स सजेस्ट इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस पर EI काम नहीं करेगी। Exactly. मैंने पहले ही कहा था कि आई रन माई ओन कंपनी, पहली लाइन थी. और मैंने एंड में पूछा EI कितनी मिलेगी, लोग बैठे हुए बस कैलकुलेशन निकालते रहेंगे एग्जाम में, फिर वो कहेंगे टू टफ, आउट ऑफ कोर्स. आउट पेपर जो था वो बिल्कुल
बिल्कुल आउट कोर्स सिलेबस से आउट था, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैंने तो ये भी निकाला, मैंने तो ये भी कर दिया, ये भी हुआ, बट आपने पहला लाइन ही नहीं पढ़ी। मैंने कहा असद रन अ कंपनी। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मैं तो ईआई कटवाता ही नहीं अपने पेचेक से, तो मुझे वो मिलेगी ही नहीं। सो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, टेल देम प्लीज हैव अ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इन प्लेस, बिकॉज इफ टुमारो समथिंग हैपन टू यू, एम्प्लॉयज को तो अगर डिसेबल हो जाते हैं तो ईआई 119 डेज पे करती है। लेट्स से साद को कुछ हो जाता है, ही वर्क्स अ जॉब, हिज ईआई विल कवर हिम फॉर 119 डेज। बट मुझे कुछ हो जाता है ना, तो आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई विल गेट जीरो बेनिफिट फ्रॉम ईआई। सो स्टोरी मैटर्स, क्वेश्चन स्टोरी मैटर्स एज वेल, एंड योर स्टोरी मैटर एज वेल फॉर योर फैमिली टू। ओके, दोनों स्टोरी मैटर करती हैं। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट की। सो फार हसन, you were close, right? Mehreen, you were right, so you got a pen. Although कि आपने पास कर लिया, बट चूंकि आपने डेफिनेटली आंसर किया, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने सिर्फ एग्जाम पास नहीं किया, यू कैन टीच मैनी पीपल। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, राइट? सो हंसी मजाक अपनी जगह वो चलता रहेगा, बट आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। दैट इज द नहीं टाइप ऑफ, थैंक यू, क्योंकि ये जो तुम्हारा मेरा डिस्कशन बीच में चलता है कॉन्सेप्ट वाला, ये उसका कमाल है, क्योंकि मैंने शुरू से I'm तुमसे ये not बात कही कि मैं decrying, कॉन्सेप्ट पे बात decrying, करती हूँ, please. मैं इस तरह नहीं जा सकती, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। Yeah, तो yeah. दैट्स व्हाट द रीजन कि मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर था। All right. So that's something I want. I want to develop advisors who know their work. Guys, if you know the work, I tell you, you can do amazing things. This is highly paid industry. Let me just take this phone call. Hello? Ji Swan bhai, how are you? So guys, कोई बोर तो नहीं हो रहा? So far so good. देखो, learning is slow, but I'm building the concept, and these concept will help you. The best part about this, I'm recording this session. I'm not gonna go over this session again. I will send the video only to the people who are attending this session. If somebody comes from outside and wants this video, please do not send. Please do not send to anybody. This is only for the people who are paying value and be on this call. I will also share the link, and Jaya is working with that, so she will send all of you a WhatsApp video, and I will send it to your WhatsApp so you can keep record of this session, because I'm not going to cover this chapter 1 again after that. Maybe in 2 hours we're only able to finish chapter 1, but I tell you, once you review this, there is no way you can fail it. Marine, do you agree with this? Right? Yes. All right, so let's go on to the page number, next page of the chapter 1. Hasan, मजा आ रहा है? ओके, सो अब एक्ट्स पे, देयर आर द एक्ट्स: प्राइवेसी एक्ट, Okay. पाइपेडा, Hmm, ह्यूमन राइट कोड, mhm, डीएनसीएल, mhm. एंटी स्पैम लेजिस्लेशन, सॉरी। ASL. Okay. Anything else? That's it. No. Chapter 1 Yeah, is covered. हाँ, actually, there are more things. Automobile insurance, Okay. WCB, that's in the Automobile. provincial one. healthcare, and Okay. yeah. That's WCB in the we covered. provincial one. We covered Are they WCB. finished? नहीं, हमने WCB किया है ना, वर्कर्स। Worker compensation benefit that I just spoke about, that if you get injured at your work, Mhm. you will be compensated. But if you get injured outside work, worker compensation benefit does not pay, and it's a provincial plan, right? ये बात करते हो, यहीं से start किया था ना? Okay, okay, समझ गई मैं. So, Heading. okay, so let's go on to this chapter 1 and last few concept. Look, PIPEDA is an act. PIPEDA is personal information. मुझे इसका नाम नहीं पता है, मुझे परवाह भी नहीं है इसका नाम याद करने की. I don't care, right? Just PIPEDA is something that I remember. So this is an information act. You in this country, you want to become a doctor, lawyer, mechanic, whatever. PIPEDA is always everywhere, because you need, in this country like Canada, you need to keep information confidential for your client, and this act is all about keeping personal information confidential. Fair enough. So this law, this act will never leave your life, whatever license or whatever study program you go in. Now, according to this PIPEDA rule, yes, Mary? इसको आसानी से याद करने का सिर्फ एक तरीका है, डॉक्यूमेंटेशन चाहे पेपर पे हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, आप उसकी कोई ब्रीच नहीं कर सकते. हाँ. सिंपल. अगर आपने ब्रीच की, देन यू आर
कोई भी आपको लॉ सूट करेगा और पर वो वो लिंक पाइपेडा के थ्रू ना हो, करेगा। मतलब आप अनलॉक नहीं रख सकते किसी चीज में। आप अगर किसी चीज को कंप्यूटर में है अनलॉक नहीं रख सकते, तो तो सिंपल पासवर्ड इसका हो। तरीका जो है ना आसान लफ्जों में वो यही है कि डॉक्यूमेंटेशन चाहे वो ऑन पेपर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, कि आपके कंप्यूटर पे भी हो, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अगर घर में होगी, कैबिनेट में होगी, तो कैबिनेट लॉक होनी चाहिए, चाबी आपके पास होनी चाहिए। घर में अनलॉक नहीं होनी चाहिए कि किसी के एक्सेस में वो आ जाए। एक और बात, इफ यू टेक अ कंसेंट फ्रॉम समवन, लेट्स से समटाइम व्हाट हैपेंस, आई विल गिव यू दिस एग्जांपल। ये होता है, मैंने किसी की लाइफ इंश्योरेंस की एप्लीकेशन फाइल की, कंपनी ने मेडिकल मांग लिया, ठीक है, medical, the company asked for the medical, and for medical I need to now take the consent from Mahanur, the company is wanting your information from this doctor जो आपका family physician है, you give the consent so that doctor share information with that company, fair enough, so they require your consent to get this information, otherwise doctor company को बोल देगा कि भाई मैं नहीं share कर सकता information because of pipeda, fair enough. Marine, put your hand down, or you want to add something? Okay, then bring your hand down. All right. So this is PyPeda, and PyPeda से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है एथिक्स में। बाकी हमें उस्मान भाई ने ज्वाइन किया है, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। ही जस्ट शोड अप फ्रॉम हिज वर्क विदाउट खाना खाए बगैर, कुछ भी किए बगैर। इन्होंने मुझे कॉल अभी किया है, अभी मैंने इन्हीं की कॉल ली थी, और इन्होंने ज्वाइन किया। इनकी वाइफ भी हैं, इस बिजनेस को सीख रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। मेरे लिए हर वो बंदा रिस्पेक्टेड है जो टाइम डाल रहा है और चीज़ें कर रहा है, एंड आई वांट टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू। यू आर पुटिंग इन टाइम। किसका पता नहीं क्या पर्पस है, किसकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, बट all what we're trying is to take people and win together. That is what my mission is. So let's give it up for Usman bhai, right? Usman bhai, don't worry about it. अगर आपने सेशन मिस भी किया है तो मैं चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट डिटेल में बता रहा हूँ in my own language, and I'm recording this session too. You will also Okay. get a recording video so that Okay, thank you. you won't miss it. That does not mean that you don't show up on this video, but I respect you that the moment you came back, you showed up on this call. Otherwise, this video is only for the people who are attending the session. Okay, that I will Okay. share it with you so that the miss part Thank you you don't very have to worry about. much. Okay. Okay. All right, we'll let you go down. Don't worry about it. As long as I'm here, you nothing is gonna happen. All right. So next thing concept is DNCL. Do not call list. Do not call list. Now DNCL is a very important rule in this country. So let's say example देता हूँ मैं, महानूर को पूछता हूँ, because महानूर and उस्मान भाई and अबीरा, you guys have to finish your ethics. So महानूर आपसे का सवाल है, मैं सड़क पे जा रहा हूँ, I am walking on the road and suddenly I see a file folder that has no name on it, nothing, no address, no phone number, and I picked up that folder and that folder has 100 phone numbers with their name, and I am an insurance advisor. So an idea came to my mind, okay, let's make phone call to all these people and market my business with them. Let's try to sell them something. मानूर, क्या मैं उन सारे 100 नंबर पे कॉल कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मानूर नहीं कर सकता. So what do I need to make sure before calling those numbers? जस्ट टू मेक श्योर कि वो किसी उन्होंने जो है वो डू नॉट कॉल लिस्ट में डाला हुआ ना हो। एक होता है कि जो डिस्टरबेंस उन्होंने की हुई होती है कि भाई एक होता है कि अनसब्सक्राइब करना। आई डोंट नो वो इसी पॉइंट में आता है किसी और में आता That's है। something else. Just okay. Good one that ओके you answered. ओके So before making a phone call to anybody, if we are making phone call for marketing reason, make sure we check the number in DNCL first. Because if somebody has put their number in DNCL and we as a marketeer cannot call them, they have the right to sue us. Fair enough? लेकिन All हमें right. कैसे पता लगेगा कि उसने डीएनसी में डाला हुआ है? So उस्मान भाई, आई हैव द फोन नंबर विद मी ऑन दैट पेपर. मैं DNCL की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां वो फोन नंबर डालूंगा, वो खुद ही बता देगा कि ये नंबर ओके रजिस्टर्ड है कि नहीं है. ठीक हो गया? तो वो पता चल जाएगा. सो दैट्स अबाउट DNCL. बट वन मोर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट. अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैं खुद अपना नंबर DNCL पे डालना चाह रहा हूँ, बट मैं बिजनेस रन करता हूँ, मेरा बिजनेस नंबर है. एज अ बिजनेस आई कैन नॉट पुट माई नंबर ऑन DNCL, क्योंकि बिजनेस को तो मार्केटिंग कॉल आनी ही वो लेनी. तो आनी ही होती है क्योंकि आपने अपना नंबर आपने अपना खुद ही पब्लिक किया हुआ है एग्जैक्टली. कि वो है ही पब्लिक के लिए। एग्जैक्टली. अगर आपको प्राइवेट नंबर है उसको आप कर सकते हो, नॉट द पब्लिक नंबर। जैसे मैं एक पर्सनल बंदा हूँ, मैं सादा आदमी हूँ, जैसे साध हूँ, तो मैं कोई जो है बिजनेस नहीं है मेरा,
तो मैं कहूँ कि यार मुझे नहीं डक क्लीनिंग की कॉलें मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं है दिन रात कॉलें चाहिए, तो मैं अपना नंबर जाके DNCL पे रजिस्टर कर दूँ। हम्म तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई बिजनेस नहीं चलाता, साथ कर सकता है, राइट। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। नाउ द हम्म लास्ट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस इज ASL, एंटी स्पैम लेजिस्लेशन। हम्म वो फोन का था, ये ईमेल का है, एंटी ये स्पैम, ईमेल्स का है जी। राइट। बट ईमेल में क्या है, इफ आई फाउंड अ सेट ऑफ ईमेल, मैं भेज सकता हूँ उसको। आई कैन हाँ, सेंड ईमेल टू एवरीवन एज लॉन्ग एज आई एम पुटिंग एन अनसब्सक्राइब बटन इन, सब्सक्राइब, हाँ। सो दैट अगर उसमें भी आपको जो है वो 24 आवर्स का जो होता है वो, 10 days या 10 days, सॉरी 10 days, राइट? या या 10 10 days डेज का का उसका तो होता मेरे को है सुन लो, हाँ। टू वो करने का। तो उसके दौरान आ भी सकती है। अब बाकी वो जो उनका जो पूरा पैटर्न बना हुआ होता है उसमें सारे होते हैं। इफ यू अनस्क्राइब सब्सक्राइब दें, उनको नोटिफिकेशन आ जाती है तो वो आपका नाम वहां से रिमूव कर देते हैं, एंड फिर आपको उसमें से नोटिफिकेशन नहीं आती है। एब्सोल्युटली। एंड लेट्स से मैंने ईमेल में अनसब्सक्राइब का बटन लगाया था, उस्मान भाई को मेरी ईमेल गई, मैं ज़ारा, उस्मान भाई ने कभी अपनी बेगम की मान के ज़ारा वालों को अपना ईमेल दे दिया। अब इनके ईमेल पे इनकी पर्सनल ईमेल 2 होती हैं और ज़ारा की 10 होती हैं। अभी ये परेशान है कि क्या हो रहा है मेरी ईमेल के ऊपर, ज़ारा की इतनी ईमेल आ रही हैं। तो नीचे ये अनसब्सक्राइब के बटन को जाके ठक करके दबा देंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन अगर मैं ज़ारा का ब्रांड हूँ तो मुझे आ जाएगी। मैंने 10 दिन के अंदर अंदर इनका ईमेल वहां से हटाना है, नहीं तो अगर 11वें दिन इनको ईमेल फिर चली गई ना ज़ारा की तरफ से, तो ये इनके पास राइट है, ये मुझे सू कर सकते हैं। फेयर इनफ। हम्म हम्म तो ये हो गया एंटी स्पैम लेजिस्लेशन। एक आखिरी चीज अबीरा बार बार कह रही है, ऑटोमोबाइल, नो फॉल्ट ऑटोमोबाइल, इसको भी सुन लें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इन कनाडा, न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर ऐसे प्रोविंसेस हैं जिसमें एक नो फॉल्ट ऑटो इंश्योरेंस प्रोविंस कवर करता है, बेसिक इंश्योरेंस गाड़ियों की। लेट्स से मेरी गाड़ी को न्यू फाउंडलैंड में अगर मेरी गाड़ी लग गई, ठीक है, और मेरा फॉल्ट नहीं है, तो मुझे इंश्योरेंस अगर मेरे पास नहीं भी है तो भी वहां की जो न्यू फाउंडलैंड की गवर्नमेंट है वो बेसिक गाड़ी मेरी कवर कर देगी। इसको कहते हैं नो फॉल्ट ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। बट ये सिर्फ न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर में है, बाकी अदर प्रोविंसेस के अंदर जो है उनकी जुरिस्डिक्शन में शायद ये नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। दे नॉर्मली आस्क द थिंग जो कि पूरे कंट्री में होती है। सॉरी असद भाई, ये सवाल आया था। ये सवाल ना को उसके अंदर है, सर्टिफिकेशन में है, बट ये गवर्नमेंट कभी नहीं पूछेगी, आई कैन गारंटी अच्छा, यू। गवर्नमेंट में ठीक है, हाँ, सर्टिफिकेशन में आया है ये। सर्टिफिकेशन में आ सकता है, इसीलिए कवर कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ओके। आ सकता है। बट एज फार एज गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट की एग्जाम की बात है ना, तो मैं आपको बता दूंगा, मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आई विल प्रिपेयर समथिंग मैसिव फॉर यू, यू विल डू गुड। बट गवर्नमेंट ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछती, गवर्नमेंट ऐसा क्वेश्चन ही पूछती है जो पूरे कंट्री में हो रहा होता है, ओके। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछेगी नहीं। बाय द वे, सो दिस इज व्हाट ऑटोमोबाइल थिंग, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने बता उसका आंसर कर देना है जैसा भी है। इसमें ये होता है कि उन कंपनी, उन प्रोविंसेस के अंदर फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो क्या करती है, वो आपको अप सेल टॉप सेलिंग करती हैं कि बेसिक कवरेज तो आपको गवर्नमेंट ने दे रखी है, आपको अगर एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए तो हमसे टॉप अप कवरेज ले लो। तो वो टॉप अप कवरेज वहां पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको देती है। मगर ओंटारियो में तो बेसिक भी आपने खुद लेनी है, और कॉम्प्रिहेंसिव या टॉप अप जो आप उसको बोलो वो आपने सब खुद ही करनी है। फेयर इनफ गाइस। या सो दिस कंक्लूड्स चैप्टर नंबर 1। What I am going to do now, that after chapter number 1, let's do a small chapter quiz of chapter number 1 together, right? And then after that quiz, I will असद एक्ट्स अभी बाकी है, ह्यूमन राइट्स कोड और डीएनसी, एंटी स्पैम लेजिस्लेशन। तो बता दो दिया एंटी स्पैम लेजिस्लेशन ऑलरेडी बता तो दिया डिस्कस। था। ओके, फिर मैं आप सॉरी, आप वो मेहता साहब को रिस्पॉन्स कर रही होंगी। एनीवे, छोड़ दें, सॉरी। ठीक है। ओके, सो चैप्टर 1 नंबर 1 इज डन। लेट्स नाउ ओपन अप द क्विज, ठीक है। और अब हम जो है ना चैप्टर 1 का क्विज करते हैं। देखें, टाइम 9:17 हो रहा है। हमने इतना पढ़ने के बाद आपको मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा स्टोरी पढ़ने के लिए और चॉइस पढ़ने के लिए, और आपने आंसर अपने जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। नीचे चैट का बटन नजर आ रहा है सबको, चैट चैट डाउन देयर चैट, चैट पे क्लिक करना, ABCD जो आपको लगेगा आपने आंसर डाल देना है, क्योंकि आफ्टर 1 मिनट आई विल टेक द पोल इन। तैयारी ही अगर अच्छी स्पीड पे करें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कमल मुझे बता रही थी वो एग्जाम में गई तो वो कह रही थी टाइमिंग ना शॉर्ट पड़ रही होती है। तो हम पहले ही अपने आप को तैयारी ऐसे करें कि हम जरा जल्दी जल्दी करें, नहीं तो हम क्या है ना कि हम
कॉन्सेप्ट आते भी होंगे तो टाइम की वजह से हाथ पांव फूल जाएंगे, फिर फेल हो जाएंगे। तो इसलिए नहीं वो practice सही अच्छी कह रही है, करो। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है कि लास्ट 2 मिनट्स रह गए थे मेरे। हाँ, तो इसलिए प्रैक्टिस ही अच्छी करो। प्रैक्टिस आपको क्योंकि आपको जब बुक खोलने की आदत नहीं होती है ना एग्जाम में, आपने कभी दिया नहीं है, तो दैट्स मेक अप मिस्टेक्स कि आपको चीजें नहीं मिल रही होती। मैं तो कहता हूँ कि आप 90% तैयारी इतनी अच्छी से कर रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बुक खोलने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं, अब तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जो आज की डिस्कशन पे हो रहे हैं, इट्स वेरी वेरी क्विक, लेकिन अगेन मिस्टेक्स हो जाती हैं आपसे हमारी sometimes। जगह आप जाके दे आना फिर। हाय, हाँ, इतना मासूमाना सवाल आपने पॉसिबिलिटी कर होती ना तो दिया। क्या बात थी, असद ने सबके एग्जाम दे के जो है ना 3 दिन में सबको फारिग करके सबके हाथ में लाइसेंस थमा सबसे पहले देना। तो अगर ये होता मैंने ना तो तो असद मैं भाई आपको बोला रात भी को था कि आप सो ही बैठ जाएं, आपने ना, सुनी नहीं मेरी बात। मैं रात को सो ही ना, अगर ये पॉसिबल हो ना मैं आप सबके एग्जाम देके ना डन करा दूं, अगर मेरे बस में हो तो। वो मूवी थी ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में, उसमें जाके उसका पेपर दे के आता है। Jaya, are you getting bored? You good? Okay, awesome. We have an English speaker here as well who is also learning Urdu. This kind of thing. सॉरी जाया, Try to talk, सॉरी। try to talk a little, if not full, little bit in English as well. By the way, in this business, if you want to become a $250,000 earner, you don't have to be very good in English. That's something I love about this business, right? Because आप अपनी कम्युनिटी में बिल्ड करते हो तो मजे से अपनी जुबान बोलते जाओ, एंजॉय करते जाओ, जिस मर्जी को पढ़ा लो. I love this thing about this business. Giving everybody a chance to win. I love this. ये है नहीं कहीं पे, नहीं तो हमेशा वो कहेंगे इंग्लिश नहीं आती, इसको तो प्रमोट ही नहीं करना यार, right? But this business, I love that they don't discriminate on these things, because you always have a trainer with you who can deal with everything. तुम कोई स्पेनिश बोलने वाला बंदा भी पकड़ लेंगे ना मीटिंग के लिए, तो मैं यहाँ से कोई स्पेनिश बोलने वाला बंदा भी ट्रेनर ढूंढ दूंगा जो मीटिंग कर देगा जाके। कोई चाइनीज पकड़ लेंगे तो मैं चाइनीज बंदा भी ढूंढ दूंगा जो मीटिंग कर देगा। हाँ, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, राइट? नाउ यू हैव टू लर्न द वर्क एंड डू इट। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। यार एक काम मैं करना चाह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल सेशन, आई वांट टू सेव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक, क्योंकि ये कोडिंग करने में ना 5 मिनट की ब्रेक लेता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, व्हेन आई शेयर द स्क्रीन तो ये हैंग हो जाती है, मेरी स्क्रीन हैंग होगी ना तो ये मेरा सेशन लूज हो जाएगा जो रिकॉर्डिंग का है। लेट मी सेव इट फर्स्ट, दिस कॉन्सेप्ट बेस। उसके बाद 5 मिनट्स आफ्टर रीजॉइन करते हैं। इतने आप भी ब्रेक लो, पानी शानी पियो, जाके अपने बच्चे अगर हैं तो उनको किस करके आओ, अगर बेगमात है तो उन्हें कर लो, हस्बैंड है तो उन्हें कर लो, ठीक है? कोई से नहीं है तो किसी को कुछ कर लो और वापस आ जाओ। जस्ट बी फ्रेश, सी यू आफ्टर 5 मिनट, और ओके? कोई काम नहीं है जो छुप के बैठे हैं ना, सुकून से बैठा रहने दो। नहीं, मैं तो यही करता हूँ, तो आप भी करना चाहो तो कर लो, ये फैमिली बिजनेस है, ठीक है? हाँ सही चलो बात है असद भाई, मैं तो सिंगल हूँ ना, मैं क्या करूँ। तुम फिर तो वो तो बोल तो रहे ना, मिंगल जिसको करने के जो लिए। करना है कर लो, किसी दोस्त को पकड़ लो। चलो गाइस, मैं इसको बंद कर रहा हूँ एंड आई विल बी बैक 5 मिनट्स आफ्टर। स्वान भाई कुछ फटाफट खा लो, ठीक है? ओके जी, ऑल राइट।